السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پوائنٹ آف ویو. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ آرزو جی، آپ نے مجھے بلایا آپ کے شو پہ. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال اور ونکم. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے. اور آج ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں گے ڈاکٹر جے شنکر کی. انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی بات کی ہے یوکرائن پہ، انڈو پیسیفک پہ، انرجی پہ، اور وہ آرٹیکل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایک. تو کیا کہیں گے آپ کے، ان کی بات آپ کو کیسی لگی اور کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا اس پہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جتنی فریکوینٹلی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور سے جے شنکر اور اینتھنی بلنکن کی، تو اٹ از لائک این آن گوئنگ کانورسیشن کہہ سکتے ہیں آپ. آن گوئنگ کانورسیشن چل رہا ہے ان کا مسلسل. تو آئی ہیو اے فیلنگ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب لیڈرز جیسا کہ فار ایگزامپل رشی سناک سے پہلی بار ملاقات ہوئی مودی کی یا کینیڈا کے پرائم منسٹر کی وغیرہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل پلیزنٹریز میں تھوڑا وقت گزر جاتا ہے. کیسے ہیں آپ، ہاؤز تھنگس، فائٹ کیسی تھی، اس طرح سے. تو اگر آدھے ایک گھنٹے کے لیے بھی ملاقات ہو رہی ہے تو وہ زیادہ تفصیلاً بات چیت نہیں ہوتی ہے unless there is some major critical issue جس پہ سے دو پارٹیز اٹکے ہوئے ہیں and then one leader will try to persuade the other leader. ورنہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ ایک لیول نیچے ہو جاتی ہیں. سو جو کرٹیکل باتیں ہیں، جو ڈس ایگریمنٹ کی باتیں ہیں، جہاں پہ اختلافات ہے امریکہ اور یو ایس کے بیچ میں، وہ باتیں جے شنکر صاحب اور بیسکلی بلنکن صاحب کے بیچ میں ہوتی ہے. سو دیٹ از وائی دس کانورسیشن از ان مینی ویز مور سگنیفیکنٹ دین سے کہ لیڈرس کی ملاقات ہوں. تو سو ان دیٹ سینس وی شوڈ سی اٹ ان دیٹ کیس. تو جو مسائل یہ جو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ایک مسئلہ جو تھا پچھلے 3-4 مہینے سے جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کو تھوڑا ٹینس کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، وچ از انڈیا بائنگ رشین آئل. تو امریکہ نے کہہ دیا کہ اب ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں خریدیں، لیکن وہ تھوڑا کیپ کا خیال رکھیں. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا کے آئل کی پرائس زیادہ نہ بڑھ جائے، کیونکہ اگر آئل کی پرائس بڑھ جاتی ہے زیادہ تو اٹ ول میک مور منی. ہاں، تو بیسکلی لیکن رشیا تو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اس لیے انڈیا خرید رہا ہے. اگر رشیا وہ ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا تو انڈیا ول ناٹ بائی، بیکاز ان کو یو اے ای یا عراق جہاں سے وہ نارملی خریدتے ہیں، سعودی عربیہ سے، وہ تیل سستا پڑ جائے گا تو دے ول اینی وے ناٹ بائی دیٹ. سو اٹس اے موٹ ایشو. تو ایک مسئلہ جو تیل کا سوال کو لے کر تھا وہ تو ختم ہو گیا. سر ویسے وہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے تھے انڈیا کو، شاید ہو سکتا ہے نہیں کنٹرول نہیں کر رہے تھے. اٹس لائک سیئنگ کہ بھائی آپ، اٹس لائک بچوں کے ساتھ، بھائی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو وہ سن ہی نہیں رہا ہے. تو اس سے بہتر کہ اٹ لکس ایز اف کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ ان کو اجازت دیتے ہیں. انڈیا کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے رشیا سے، دے ور ڈوئنگ اٹ اینی وے نا. تو یا تو امریکہ کچھ سختی سے بات کرے کہ دس از افیکٹنگ آور ریلیشن شپ، یا سختی سے کہے کہ وی ول امپوز سینکشنز. انڈیا کے ساتھ تھوڑی بہت گڑبڑ تو کی ہے امریکہ نے. ایک چیز یہ کی ہے کہ ویزاز بہت ڈیلیٹ کر دیے. کہہ رہے ہیں کہ 400 دن 800 دن لگ جا رہے ہیں، یعنی 2-3 سال لگ رہے ہیں لوگوں کو ویزاز ملنے کے لیے امریکہ کے لیے. تو دس از این انڈائریکٹ، وہ کہتے ہیں نا پیسو اگریسو وے آف ریسپونڈنگ. بغیر کوئی نیگیٹو بات کہے آپ نیگیٹو کام کر رہے ہیں. تو جب بھی میرے خیال سے انڈیا کے طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جیسے وی آر لوکنگ انٹو اٹ، پھر اس کے بعد they are not doing anything. دوسری چیز کا جو میرے خیال سے is going to become a bigger issue انڈیا اور یو ایس کو لے کر، جو انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک کی بات. تو دس از ڈفرینٹ فرام دا کوڈ الگ چیز ہے. کوڈ از، جہاں تک کہ امریکہ کا سوال ہے، کوڈ از اے سیکورٹی پارٹنرشپ ان ملکوں کے. اٹس اے سیکورٹی الائنس، کائنڈ آف این الائنس از اے ٹیکنیکل ٹرم. الائنس اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی
ट्रीटी साइन करते हैं. जैसा पाकिस्तान को ड्यूरिंग द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नॉन नेटो इस तरह का स्टेटस दिया हुआ था ना, NNO कुछ स्टेटस है वो. तो वो लोग भूल गए वो स्टेटस पाकिस्तान का टेक्निकली अभी भी है नॉन नेटो मेन नॉन नेटो कुछ एलाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है. तो इट्स नॉट एन अलायंस बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्वाड का. इंडिया उसको मुख्तलिफ तौर से देखता है. इंडिया लुक्स एट इट एज ए डायलॉग नॉट एज ए अलायंस या पार्टनरशिप. लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है ये 14 मुल्कों को यूज करता है. तो बेसिकली इट इज लाइक अमेरिकाज वे टू रेस्पॉन्ड टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बेसिकली चाइना कई मुल्कों को अपनी इकोनॉमी से यूं कहिए कि कनेक्ट करना चाह रहा है, इफ यू वांट टू यूज अ पोलाइट वर्ड, या अपनी इकोनॉमिक वेब में बेसिकली फंसाना चाह रहा है, इफ यू वांट टू यूज अ नेगेटिव टर्म. तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी की बात है वो. तो लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो ईस्ट एशिया के 14 मुल्कों को लेकर बेसिकली कोशिश कर रहा है कि उनके बीच में ट्रेड, उनके बीच में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रमोट करे ताकि वो पूरी तरह से जो है सो चाइना की जेब में ना आ जाए. देखिए डेमोक्रेसी का जब सवाल उठता है तो फिलवक्त मुस्लिम दुनिया में बहुत कम डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन जो शायद वन ऑफ द बेस्ट है आप उसको इंडोनेशिया कह सकते हैं. तो इंडोनेशिया इज़ अ वेरी गुड डेमोक्रेसी. इट इज़ पार्ट ऑफ G20. वो दुनिया की 16वीं इकोनॉमी है और आइंदा 5-6 साल में 10 साल के अंदर इट विल बी इन द टॉप 7 और कह रहे हैं कि 2030-35 तक इट विल बी इन द टॉप 5 इकोनॉमीज, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा है. अगर ज़रा भी 300 मिलियन के करीब हो जाएगा उसका पॉपुलेशन. सो सवाल ये उठता है कि इफ इंडोनेशिया इज अ डेमोक्रेसी व्हाई इज इट नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड? इफ द क्वाड इज सही डेमोक्रेटिक अगर अलायंस है तो इंडोनेशिया उनके हिस्से में क्यों है? द रीजन फॉर दैट इज कि चाइना के इन्वेस्टमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं इंडोनेशिया में कि इंडोनेशिया मजबूरन ना कह रहा है अमेरिका का. आई एम श्योर कि बिहाइंड द सीन्स मैंने ये इंडोनेशिया से मेरे पास स्कॉलर्स आते हैं पढ़ने फॉरेन पॉलिसी के. 2 एक्सपर्ट्स आए थे, इससे पहले एक आए थे जो वाइस प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे. जब मैंने उनसे पूछा तो दे वर काइंड ऑफ एट अ लॉस. बट आई थिंक कि अमेरिका ने काफ़ी पुश किया है टू ब्रिंग इंडोनेशिया इनटू द क्वाड. जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के भी काफ़ी दिनों तक सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स थी. लेकिन चाइना के जो हैवी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके वजह से इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर क्वाड. इंडिया में भी चाइना के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं. दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग रीज़न वाई इंडिया इज़ थोड़ा हेजिटेंट टू ज्वाइन पूरी तरह से द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक. तो वो चीज़ें ब्लिंकन और जयशंकर के बीच में दे वर डिस्कसिंग दोज इश्यूज. उन्होंने पब्लिक में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि हम ये मुद्दों पे बात कर रहे थे. क्या तय हुआ वो जाहिर नहीं हुआ. और उसके बाद बाली में भी ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना बाइडन ने उन मसलों को उठाया. लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस किया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PMO वाला जो ट्विटर अकाउंट है उसमें देखें तो उनकी सारी तस्वीरें विथ ऑल द लीडर्स जिनसे वो मिल रहे हैं वो सारी तस्वीरें लगे हुए हैं. और बाइडन से जो मुलाकात हुई तो 2 बार वो तस्वीरें लगी हुई हैं. लेकिन मैं प्रेसिडेंट ऑफ द US पोर्टिस की अगर आप जाके ट्विटर अकाउंट में देखें तो बाइडन इज नॉट पोस्टिंग फोटोग्राफ्स विथ मोदी. मतलब बाइडन के फोटोग्राफ बाकी के साथ किया है क्या? बाकी लोग ऋषि सुनाक के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के अल्बानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ की फोटोग्राफ देखा मैं. और 3-4 और फोटोग्राफ है. ऑफ कोर्स अभी जो नेटो की वहाँ पे मीटिंग हुई इनफॉर्मल लीडरशिप वो भी फोटो लगी हुई है. और सबसे अच्छी बात ये भी थी कि उन्होंने अपने स्टाफ के साथ एक बहुत अच्छी फोटो लगाई. बाइडन यू कैन सी कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और ब्लिंकन के साथ बैठे हैं और ये तीनों
जो संडे को आप घर में जो कपड़े पहनते हैं ना, वैसे लग रहे हैं, मतलब दे आर वेयरिंग मतलब इनफॉर्मल क्लोथ्स में बैठे हुए हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं है पिक्चर आपके ख्याल से? दैट इज एन इंटरेस्टिंग सवाल। तो वही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि बिकॉज हर चीज हैज डिप्लोमेटिक मीनिंग ना, ये भूल तो नहीं सकते, यू कैनॉट से कि भूल गए, ऐसा कैसा भूल सकते हैं आप, दैट इज नॉट अ चॉइस। सो देयर इज अ चॉइस कि ये डालना है, ये नहीं डालना है, somebody is deciding, the communications director of the White House जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, they are deciding to post this pictures or not that pictures। मेरे ख्याल से आपका जब शो आएगा काफी ट्रोलिंग होने वाली है फोटोज की, बट बट उसके हट कर भी इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड मुझे लगता है कि उसका कनेक्शन हैज समथिंग टू डू विद द मीटिंग इन आसियान व्हिच मे नॉट हैव गॉन वेल। हो सकता है, लेकिन सर एक एक वीडियो भी एक बड़ी वायरल हुई थी इसी इवेंट की कि मोदी जी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है और चाइनीज प्रेसिडेंट के आपस में, जी हाँ, वो अगर आपने देखी हो, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए 2-3 मीटिंग्स जो जो इंडिया की तरफ से, जो अगर आप वीडियोस वगैरह देखें तो जिस तरह से मुलाकात हुई बाइडेन की और नरेंद्र मोदी की, इट क्लियरली शोज कि दे आर वेरी फ्रेंडली, मतलब बहुत अच्छे दोस्त की तरह मिले। मतलब बाइडेन बाकायदा अपना हाथ इज अराउंड मोदी और मोदी बात कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ये सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि इट्स यूजुअली मोदी हु इज टॉकिंग एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग। तो जी पिंग के साथ जो मुलाकात हुई, दिस वाज एट द ऑफिशियल डिनर था। दे आर नॉट इन द सेम पैनल्स, कहीं भी नहीं थे, डिनर पे मुलाकात हुई। एंड दोनों के स्केड्यूल पे नहीं था कि देयर इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल मीटिंग। अभी तक 2 अपॉर्चुनिटीज थे, दोनों ने मिस कर दिए। समरकंद वाली भी एससीओ की मीटिंग, यहाँ पे भी दे कुड हैव सैट डाउन एंड टॉक्ड, बट उन्होंने नहीं। एटलीस्ट यहाँ की जो मीटिंग हुई जिसमें हाथ मिलाए, वो यू कुड सी के बहुत बात कर रहे हैं। मोदी बहुत ही मतलब यू कैन सी एंथुसियास्टिकली मोदी स्पीकिंग, और जी जिनपिंग मुस्कुराते हुए सुन रहा है। बाद लोगों का ख्याल था कि जब बाइडेन के साथ फोटो आप ले रहे थे, जी जिनपिंग वाज नॉट लुकिंग हैप्पी, बट और सो दोस मीटिंग्स, और ये मीटिंग्स आर नॉट एक्सीडेंट। इस तरह नहीं कि आप बाजार में जा रहे हैं, अरे प्रोफेसर साहब आप वहां पर है, हेलो, ऐसा ऐसा नहीं होता। ओके, दिस इज ऑल प्री अरेंज्ड मीटिंग। एग्जैक्टली। हर चीज, इनफैक्ट आई हैव अ फीलिंग कि जो बातें होंगी वो भी ऑलरेडी नेगोशिएट हो जाएंगी। ये लफ्ज यू करे, ये करे, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड। कैमराज, इसलिए भी वो मीटिंग्स की आपको वीडियोस मिलते हैं, बिकॉज द मीडिया इज ऑल्सो अलर्टेड कि दे आर गोइंग टू मीट। आधा ये घंटा तो पहले से डिसाइड होता है कि किसने किससे बात करनी है, हाँ मिलना है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। तो इट शोज के धीरे धीरे देयर इज सम काइंड ऑफ अ थॉइंग ऑफ द रिलेशनशिप, यानी धीरे धीरे दोनों मुल्कों के बीच में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भी इट विल बी वेरी क्रिटिकल टू सी कि जी जिनपिंग G20 और एससीओ की मीटिंग्स के लिए इंडिया आते हैं या नहीं आते हैं। अगर इंडिया आते हैं तो विल देयर बी बायलैटरल मीटिंग्स। इमेजिन इंडिया जाएं और यू नॉट डू अदर डिस्कशंस, खासतौर से इंडिया का जो बॉर्डर का मसला है कश्मीर को लेके, गलवान में वो सारी चीज़ों के इश्यूज को, दैट वुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। खासतौर से एससीओ की मीटिंग में उन मसलों को दे शुड बी एबल टू पुट दैट बिहाइंड देम। सो वी शैल सी के क्या होता है। लेकिन ये जो बाली की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल से इस मीटिंग के हीरो जी जिनपिंग हैं। कई चीज़ें हुई हैं विच आर इंटरेस्टिंग। एक बाइडेन के साथ 3.5 घंटे की मीटिंग, बाइडेन ने इतना वक्त किसी के साथ नहीं गुजारा, ना शी जिनपिंग ने इतना वक्त किसी के साथ गुजारा। सो मेरे लिए इट शोज के जो देर आर कई पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है ना, और कई पॉइंट्स ऑफ क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो आई थिंक दे हैव गॉन थ्रू सेवरल ऑफ दोज इश्यूज। मतलब ये मुद्दा इस और दूसरी चीज ये है जो बाद में पोस्ट जी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यहाँ पे काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं रिपब्लिकन्स बाय द वे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उन्होंने फ्रैंकली 2-3 चीजें कह दी विच शोज के ही सॉफ्टनिंग टुवर्ड्स
चाइना। एक उन्होंने कह दिया रिपीटेडली कि दिस इज नॉट अ कोल्ड वॉर, वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर, वी डोंट सी दिस एज अ कोल्ड वॉर, दिस इज बिकमिंग ए कंपटीशन, हम चाइना के साथ compete कर रहे हैं इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल इस स्फीयर्स में। जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में, नेशनल स्ट्रैटेजी का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने छापा है उसमें भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए। बट उन्होंने फिर रिपीट किया कि ताइवान के मसले को लेकर कि अमेरिका हैज नॉट चेंज्ड दिस पॉलिसी, कि अमेरिका इज, मतलब यही पॉलिसी है जो बाइडेन से पहले थी, ओबामा के ज़माने में, बुश के ज़माने में, वो वन चाइना वाली पॉलिसी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात की बाइडेन ने, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ कंसिस्टेंट विद द ओल्ड पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि हम स्टेटस को चाहते हैं, यानी मामला जैसा है वैसे ही रहे, और कोई भी मुल्क अगर यूनिलैटरली उस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चाइना कोई स्टेप लेता है ताइवान की तरफ तो अमेरिका विल अपोज दैट, और अगर ताइवान इंडिपेंडेंस की तरफ कोई कदम उठाता है तो अमेरिका विल अपोज दैट। यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के जो हमारे मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो हाउस यानी जो लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, उसमें पार्टी बदल गई है, अब रिपब्लिकन्स हैव टेकन ओवर, और केविन मैकार्थी जो एक्सपेक्टेड है कि शायद वो स्पीकर ऑफ द हाउस बनेंगे अगर वो लीडरशिप का जो वोट है रिपब्लिकन पार्टी का उनको मिल जाता है, तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि वो ताइवान जाएंगे। और ये सारे जो मसाइल उठे हैं रिसेंट महीनों में वो नैन्सी पेलोसी की ट्रिप की वजह से थे, जिससे चाइना बहुत अपसेट हो गई थी। चाइना ने जितने भी डायलॉग्स थे अमेरिका के साथ वो सारे के सारे बंद कर दिए थे, तो इस मीटिंग के बाद वो सारे के सारे दोबारा शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट बाइडेन ने कहा कि ही इज गोइंग टू सेंड ब्लिंकन टू रीस्टार्ट ऑल ऑफ दिस। तो एक किस्म से इसे मेजर डिप्लोमेटिक स्टेप फॉरवर्ड दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए। और मुझे लगता है कि वो केविन मैकार्थी अगर जाते हैं तो आई डोंट नो हाउ चाइना विल रेस्पॉन्ड, बट अगर ये डायलॉग चलते रहा तो आई थिंक अमेरिका एंड चाइना कैन टॉक अबाउट इट बिफोर। केविन मैकार्थी को रोक तो नहीं सकते बाइडेन, ही कैन नॉट। लेकिन सर इसी सब के बीच में जो है, अगर रशिया यूक्रेन को अगर हम देखें, आपके ख्याल से कहाँ पे कहीं पे लग रहा है कि वहां पे भी कोई अमन होने जा रहा है, वहां पर भी लोग कुछ वो जो टेंशन है वो कहीं कम होता देख रहे हैं? तो ये बाली में तो ऑलरेडी उन्होंने जंग को कंडेम किया, मतलब रशिया को कंडेम नहीं किया लेकिन जंग को कंडेम किया। तो सर स्टेटमेंट आई है ना, हाँ, कोई तो हमने अभी उसके ऊपर हाँ आ रही है स्टेटमेंट। आई थिंक दे स्टिल आ जाना चाहिए था अभी तक। सो जो डिस्कशन जो पहले हो रहे थे कि वेस्टर्न ममालिक चाह रहे थे कि दे कंडेम रशिया फॉर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और मेरे ख्याल से उसमें इंडिया और चाइना वेर अपोजिंग दैट, एंड सो दे विल से वी विल कंडेम द वॉर। वो तो नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में भी कह दिया कि ये जमाना जंग का नहीं है, इस बार भी उन्होंने पीस वगैरह, और सारे के सारे मुल्क मुत्तफिक हैं इस बात पर और इन अग्रीमेंट कि न्यूक्लियर वेपन्स का किसी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। रशिया का रोल वाज वेरी स्ट्रेंज, पुतिन नहीं आए और लैवरोव आए, फिर उनको वहाँ पे बुखार हो गया, सो ही वाज नॉट वेरी एक्टिव, फिर वो जल्दी चले गए। और देन फिर ये जो पोलैंड का एक्सीडेंट की जो खबर आई है, सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट। और तो मुझे लगता है कि यूक्रेन का मसला तो मतलब द वेस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स के चाइना और इंडिया रोक तो नहीं सकते रशिया को, बट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दो चीज़ें, कि एक्चुअल मटेरियल सपोर्ट ना दें चाइना को, रशिया को, और दूसरी चीज़ ये है कि रशिया के साथ ऐसे डिप्लोमेटिक चीज़ें ना करें जिससे रशिया को लेजिटिमेसी मिलते रहे। और अभी अमेरिका ने उन कंपनीज को जिन्होंने ईरान के ड्रोन्स रशिया को पहुंचाए उनके ऊपर सैंक्शंस डाल दिए हैं। सो दिस इज अ सिग्नल कि अगर आप डायरेक्टली, तो चाइना जिस तरह से, इंडिया हैज नॉट गिवन मटेरियल सपोर्ट टू रशिया जंग के लिए, इंडिया ने सिर्फ तेल खरीदी है जिसकी वजह से पैसे मिले हैं रशिया को, राइट, बट इंडिया ने हथियार वगैरह कुछ नहीं दिए।
but China was selling stuff to them, और China is being very careful कि वो सिर्फ वो चीजें वो बेच रहा है जो can avoid the sanctions. मतलब they are watching it very closely. मेरे ख्याल से उनके lawyers are looking at the text of the sanctions, or they are trying to make sure कि रशिया की मदद करें but without violating any of the rules. क्योंकि चाइनीज कंपनीज पे अगर सैंक्शंस लग गए तो चाइना का बहुत नुकसान होता है इकोनॉमिकली. सो दैट इज वेयर द सिचुएशन इज यूक्रेन की जंग को लेकर. लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली यूक्रेन के मसले पर तो बाइडन की हुआ कि बाइडन कहने लगे हैं कि इट इज टाइम टू थिंक ऑफ ए सीज फायर, और विंटर में ही वो सेइंग कि शायद ये दोनों मुल्क शायद आगे कुछ नहीं करेंगे. तो ये सीज फायर का लफ्ज इलेक्शन से पहले, मिड टर्म इलेक्शन से पहले तो कोई नहीं ले रहा था, लेकिन अब याद गया, मैं सेनेटर क्रिस कून्स को अपने शो पे इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये डिसीजन हम बेसिकली यूक्रेन पे छोड़ देते हैं. जब तक यूक्रेन लड़ेगा हम जब तक यूक्रेन को मदद करेंगे, हथियार भी देंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे. लेकिन बाइडन अब इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस के बाद खास तौर से बाली में उन्होंने बहुत क्लियरली ये मुद्दा उठाया है कि वी नीड टू टॉक अबाउट सीज फायर. और जो डिप्लोमेटिक चैटर है उसमें कह रहे हैं कि दे आर होपिंग कि इंडिया विल टेक द लीड ऑन दिस, इंडिया विल बिकम काइंड ऑफ ए पीस मेकर या सीज फायर के चीजें नेगोशिएट करें. दोनों नहीं थे वहां पे, जेलेंस्की भी नहीं थे, पुतिन भी नहीं थे वहां पर. जेलेंस्की आई थिंक रिमोटली ज्वाइन किए. सो आई हैव अ फीलिंग के अनकरीब अगर कोई विजिट होती है, रशिया से कांटेक्ट होता है इंडिया का, तो देन यू कैन से कि परहैप्स इंडिया इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट सीज फायर. अभी पब्लिकली तो कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं हुए सीज फायर को लेकर, बट सर होना तो जी, इंडिया विल प्ले अ रोल. जी बोलिए. सर बिल्कुल होना तो यही चाहिए, क्योंकि उससे पूरी दुनिया का सिर्फ नुकसान हो रहा है, फायदा कोई नहीं हो रहा है इस जंग से, टेंशन से जो यूक्रेन और रशिया की है. जो ओपनिंग स्टेटमेंट था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने उसमें साफ कहा कि इसके वजह से जो गरीब मुल्क हैं उनमें भूख, हंगर का बहुत प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ. एंड देन ही आल्सो मेड क्लियर कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया. सो मतलब ही वाज सेंडिंग द सिग्नल कि मैं दूसरे ममालिकों के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ जो कहते हैं ना. तो ग्लोबल साउथ में तो अगर ये मसला इस तरह चलते रहा तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें अगर रिसेशन आ गया तो एक ग्रोथ रुक जाएगी. बट क्योंकि some of the developmental initiatives are on loans, वो रिवर्स में आ जाएंगे डेवलपमेंट. बिल्कुल. और अभी भी सर, अभी अगर रिवर्स में नहीं भी आए तब भी काफी नुकसान हुआ है, और इवन पाकिस्तान में भी बहुत उसका असर पड़ा है. ऐसा नहीं है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है. तो वो चीज होनी चाहिए कि किसी तरीके से इस टेंशन को, इस वॉर को जो है रोका जाए. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. होप टू सी यू सून सर नेक्स्ट वीक. थैंक यू.